Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are well. And even you are doing preparation for your unit test 1. So, syllabus for your unit test 1 is from chapter 1 to 5. So, learn all the book exercises, question answers, MCQ, true and false, fill in the blanks of the chapter 1 to 5. Okay, student. Now, I am teaching you. Today date is 8/8/2020, chapter number 12. Okay, in chapter number 12 we are name of the chapter is air, water and weather. So in what we have done in our previous video, let recapitulate, and after that we will continue with the new topic, sun and weather. Sun and weather. So student, we all of you open page number 71 and take one rough copy with you, and if you have any doubt you can note down the doubts and you can ask your doubt in online doubt sessions. Okay, now see student, page number 70, sun and weather. The sun causes changes in the weather condition. The blowing of wind or the formation of the clouds is due to the heat of the sun. This we have already discussed in our previous video. It means the changes which are formed, that is change of weathers, all this depends upon the sun heat. All this depend upon the sun heat. So student, let recapitulate what we have done. For example, now come to page number 72, sea bridge. So student, what happens in the sea bridge? Let divide the board. Okay, for example, what is this? This is a sea. And what is this? This is a land. Okay, so student, sea bridge and land bridge. So this is a new term for you. So I explain you so that you are able to understand. See student, when the light of the sun come on the surface of the earth, then this light falls on the land also and this light fall on the sea also. ठीक है, जब सन की लाइट आती है तो लैंड पे भी वो आती है और सी पे भी आती है. नाउ बोथ लैंड एंड सी हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज. सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लैंड, ठीक है, both land and sea have their own properties. When the light from the sun is coming on the surface of the land and sea, so see student, what happens then? See, what is the property of a land? The property of the land is that land बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है. Is it clear? You are understanding? Due to the sunlight, what happens? Due to the sunlight, land very quickly heated. ठीक है, सनलाइट से लैंड बहुत जल्दी हीट हो जाता है. Is it clear? And
at the same time, see student, the land with the light of the sun quickly heated. On the other hand, when the same light falls on the sea water, then it take long time to heat. ठीक है, जब सन की लाइट जो लैंड पे पड़ती है, लैंड की अपनी प्रॉपर्टीज है, लैंड बहुत जल्दी से हीट हो जाता है, तो लैंड हीट भी बहुत जल्दी होता है. तो when there is no light of the sun, it means I am talking about the night time. Is it clear? In the morning time, when there is a light of the sun, the property of the land is let land heat up very fast. But in the same way, when there is no light of the sun, it also cools very fast. इसे आप समझ लो. ठीक है, जब सन की लाइट लैंड पे पड़ रही है, और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, ठीक है, सो हाउ और कोस्टल एरियाज में द एरियाज ऑफ द लैंड विच आर इन टच ऑफ ए सी वाटर. ठीक है, तो हवाएं कैसे चलती हैं, सी ब्रिज क्या होती है और लैंड ब्रिज क्या होती है. ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पढ़ना है इस पे. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, मतलब हवा कैसे चल रही है फ्रॉम सी साइड एंड फ्रॉम द लैंड साइड. सो द इंपॉर्टेंट थिंग सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करो, लैंड एंड सी है. ठीक है, लैंड की क्या प्रॉपर्टी है, इट बिकम हीट वेरी फास्ट इन द डे टाइम ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन. And when there is no light, you are understanding when what I am explaining, when there is no light, at that time the land also cools very fast. ये हीट भी बहुत जल्दी हो जाता है सनलाइट से, तो कूल भी बहुत जल्दी हो जाता है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड कम टू द सी, इट टेक लॉन्ग टाइम टू हीट. सी में जो है ऑलरेडी वाटर है इसमें, तो जब सनलाइट इस पे सी वाटर पे जब आती है, तो इट टेक लॉन्ग टाइम टू वार्म. उसे वार्म होने में या हीट होने में ज्यादा टाइम लग जाता है, और लैंड क्विकली हो जाता है. यही डिफरेंस आपको पहले दिमाग में अच्छे से समझ लेना है. ठीक है, दैट इज द रीजन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. व्हेन द सनलाइट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डे टाइम, when the sunlight falls on the surface of a land and it falls on the surface of a sea water, then what happen, the property of a land is that it heat very fast, it quickly heated land. And when there is no sunlight, मतलब इस समय मैं रात की बात कर रहा हूं, I am talking about the night. It means now I am talking about the night when there is no sunlight. At that time land heat भी बहुत फास्ट हुआ था, तो इट आल्सो कूल्स वेरी क्विकली. हीट भी जल्दी हो जाता है, और कूल भी क्विकली हो जाता है. ऑन द अदर हैंड साइड, व्हेन यू सी सी वाटर, सो व्हाट हैपन, व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन दिस सी वाटर इन द डे टाइम, इट टेक लॉन्ग टाइम टू वार्म. इसे ज्यादा समय लगता है वार्म होने में. ठीक है, जब इसे वार्म होने में काफी ज्यादा समय लगता है, तो उसे कूल होने में भी टाइम लगता है. लैंड वार्म भी जल्दी होता है, कूल भी जल्दी होता है. एंड सी वाटर इट टेक लॉन्ग टाइम टू वार्म, इसे ज्यादा समय लगता है वार्म होने में, तो इसे कूल होने में भी ज्यादा टाइम लगता है. इज इट क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट पहले समझ लो. इज इट क्लियर? नाउ अब देखो सी ब्रिज देखो. नाउ सी व्हाट्स हैपेंड. इधर मैंने एरो बनाया हॉट ईयर. Is it clear? See this, and from here cool air. Now student try to understand what happens. देखो अब जो, क्योंकि air is present all around us, हम कहते हैं ना हवा हमारे चारों तरफ है. We can feel the air but we cannot see the air with our eyes. आया बेटा आपको यहां तक समझ में? एयर इज ऑल अराउंड अस. इवन जब चैप्टर नंबर 8 या 9 में आप लोग ने एयर की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, मैम ने आपको बताया होगा कि व्हाट दिस बॉटल इज, बच्चे अक्सर बॉटल देख के बोल देते हैं दिस बॉटल इज एम्प्टी, कुछ नहीं है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है.
द एयर इज इनसाइड दैट बॉटल। उसका मैम ने एक एक्टिविटी भी आपको बताई होगी। व्हेन यू put the bottle in the water, then the water will not enter in the bottle, and if you tilt the bottle, हल्का सा उसको टेढ़ा करोगे, then you will see the bubbles are coming. What is this? That is air. That is air. Is it clear? So student, we can feel the air but we cannot see the air. Now see what's happened in the daytime. Sea bridge पहले explain कर रहा हूं. What happens in the daytime? I told you just now, due to the sunlight, land heat very fast. बहुत जल्दी लैंड क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. अब जो एयर अभी मैंने बताया, एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हवा है. इज इट क्लियर? चारों तरफ हवा है, हवा सब जगह है. इज इट क्लियर? सो द एयर विच इज अबव दिस ग्राउंड, लैंड बहुत तेज हीट हो गया, तो अब इस लैंड के ऊपर जो एयर रही होगी वो भी हीट हो जाएगी. बिकॉज व्हेन द लैंड हीट अप, लैंड हीट हो गया तो इसकी हीट से ये एयर भी बहुत ज्यादा क्या वार्म हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, वार्म हो जाएगी. एंड व्हेन एंड देन व्हाट्स हैपन, दिस वार्म एयर राइजेस अप. ये हॉट एयर क्या है, ऊपर की ओर राइजेस कर जाती है. आ रही है बात समझ में? हॉट एयर कहां गई, ऊपर की ओर राइज कर गई. आ गया समझ में? अब नाउ व्हाट्स हैपन, कम टू द सी. मैंने आपको क्या बोला, सी वाटर टेक लॉन्ग टाइम टू वार्म. सी वाटर को वार्म होने में ज्यादा समय लगता है. तो अब ये जो सी वाटर है, इसके ऊपर कौन सी एयर है, इसके ऊपर जो एयर होगी वो कूल होगी. यहां जो लैंड था, लैंड के ऊपर जो एयर थी वो बिल्कुल वार्म थी. वाई? बिकॉज लैंड वार्म वेरी फास्ट. अब लैंड बहुत जल्दी से वेरी फास्ट वार्म हो जाता है, क्योंकि ये दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं. लैंड की प्रॉपर्टी है सनलाइट से तुरंत हीटअप भी हो जाता है, एंड व्हेन देयर इज नो लाइट वो कूल भी बहुत तेज होता है. एंड इन द सी में क्या है, सी वाटर की क्या प्रॉपर्टी है, इट टेक टाइम टू वार्म अप. इसे वार्म अप होने में टाइम लगता है, तो फिर इसे कूल होने में भी टाइम लगता है. इज इट क्लियर? इसकी तरह ये क्विकली नहीं हो जाता है. सो नाउ ड्यू टू द लैंड हीट, व्हाट हैपन, द एयर विच इज अबव दिस लैंड, इस लैंड के ऊपर की जो एयर थी वो भी तुरंत वार्म हो गई. एंड व्हेन द एयर बिकम वार्म, देन दैट हॉट एयर राइजेस अप. वो क्योंकि वार्म होने के बाद जब वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है वाटर, तो उसका वेट क्या हो जाता है, लेस हो जाता है. देन इट राइजेस अप. अब ये हवा ऊपर की ओर उठ गई. नाउ देन व्हाट्स हैपन, now come to the sea level, it take time to warm. It means above this sea water, above this sea water, अब यहाँ पे जो एयर है that is cool, that is cool. So when warm air, hot air rises up, so the place of the, अब जो खाली जगह हुई, so the place of the warm air is taken by the, place of the warm air is taken by the cool air. It is taken by the कूल एयर. हमें यह समझना है कि सी ब्रिज हवाएं कैसे चलती हैं. ठीक है, हवाएं कैसे चलती हैं. अब जो वार्म एयर हुई और राइज होके ऊपर चली गई. अब जो वार्म एयर की जो प्लेस थी उसको किसने ऑक्युपाई कर लिया, वहां पे कौन आ गई, कूल एयर आ गई. इज इट क्लियर? सो कूल एयर टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर. और यही कंटिन्यूअस में हो रहा है, यही प्रोसेस कंटिन्यूअस हो रही है. इज इट क्लियर? ये वार्म एयर अप हो जा रही है, द प्लेस ऑफ द वार्म एयर टेकन बाय द कूल एयर. वार्म एयर फिर अप जा रही है, एंड व्हेन दे कम विद द कूल एयर, ठीक है, यहाँ कंडेंस हो रही है, जब कूल एयर के टच में आ रही है, तो यही सर्किल की तरह ये प्रोसेस हो रही है. ठीक है, हॉट एयर अगेन कूल हो जा रही है, तो फिर वो यहां जा रही है, और जो एयर यहां से वार्म हो रही है वो ऊपर की ओर हॉट एयर बन के जा रही है. दिस इज सी ब्रिज. तो सी ब्रिज कब चलती है बेटा, डे टाइम में. इज इट क्लियर? सी ब्रिज कब होगी, ड्यूरिंग द डे. सी ब्रिज कब होती है बेटा, ड्यूरिंग द डे.
ड्यूरिंग द डे टाइम होगी आपकी, ये है आपकी सी ब्रिज। इज इट क्लियर? एक बार और समझ लो, देखो सी ब्रिज को एक बार और आप समझ लो, इसे जरा सा रब कर देते हैं। सी ब्रिज इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो उसका ऑपोजिट ही लैंड ब्रिज है। विद इन ए सेकेंड आपको समझ में आ जाएगा, आप इसे समझ गए तो वो अपने आप आ जाएगा आपको। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्री। मान लो ये क्या था? लैंड। मैंने बताया दिस इज लैंड एंड दिस इज सी। ठीक है, अब हमें सी ब्रिज व्हेन इट सी ब्रिज कब चलती है? एट द डे टाइम। कब चलती है? डे टाइम। और लैंड ब्रिज होगी तो वो नाइट में। सी ब्रिज मतलब सी से हवा कब चलती है? कूल एयर, डे के टाइम में चलती है। ठीक है, और लैंड से कूल एयर कब जाती है सी की ओर? नाइट टाइम में जाती है। इज इट क्लियर? अब देखो इसमें होता क्या है। ठीक, पहले प्रॉपर्टी इसकी समझ लो। द सन, विद द सनलाइट द लैंड हीटेड वेरी फास्ट और वेरी क्विकली, एंड बट व्हेन देयर इज नो लाइट ऑफ द सन, रात हो गई जब रात की बात कर रहा हूं, व्हेन देयर इज नो लाइट ऑफ द सन, सो इट कूल्स आल्सो वेरी फास्ट। हीट भी बहुत जल्दी होगा, कूल्स भी बहुत जल्दी होगा। ठीक, अब कम टू द सी। सी पे आ जाओ। सी में क्या होता है? इट टेक लॉन्ग टाइम टू वार्म, इसे वार्म होने में ज्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब ये देर से वार्म होता है। सो इट कूल्स, तो ये कूल भी स्लोली होगा क्योंकि इसे वार्म होने में भी ज्यादा टाइम लगा था। नाउ व्हाट हैपन इन द मॉर्निंग टाइम? इन द मॉर्निंग टाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, व्हेन दिस लैंड बिकम हीट, क्योंकि लैंड बिल्कुल हीटेड हो जाता है मॉर्निंग टाइम में ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन। सो व्हाट हैपन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हवा है। सो द एयर विच इज प्रेजेंट अबव द लैंड, इट आल्सो वार्म अप, वो भी बहुत ज्यादा हीटेड हो जाएगी। देन व्हाट्स हैपन, दिस हॉट एयर राइजेस अप। अब ये हॉट एयर क्या है? ऊपर की ओर चली गई, ग्राउंड लेवल से एयर पे जितनी ग्राउंड लेवल पे एयर थी वो भी हीट हुई एंड इट राइजेस अप, हॉट एयर ऊपर चली गई। ठीक है, अब नाउ व्हाट हैपन एट द सी लेवल? सी क्या है? इट टेक टाइम टू वार्म अप। सो अब इस वाटर के ऊपर जो एयर रही होगी ये क्या है? कूल एयर है। तो व्हेन द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस अप, अब ये स्पेस खाली हो गई। ठीक है, अब सी के ऊपर कैसी एयर थी? कूल थी, क्योंकि उसे गर्म होने में टाइम लगता है। सो दिस स्पेस ऑफ द हॉट एयर इज ऑक्युपाइड बाई अ कूल एयर। ठीक है, तो देखो सी ब्रिज क्या है? सी से कहां आ रही है? लैंड की ओर आ रही है। एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, यही प्रोसेस क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस हो रहा है। दैट इज योर सी ब्रिज, दैट इज योर सी ब्रिज। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब आ जाओ लैंड ब्रिज पे। अगेन बना लेते हैं इसको ऐसे, और this is sea and this is land. Now we will study land bridge. ठीक है, सी ब्रिज पढ़ ली। अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे? लैंड ब्रिज पढ़ेंगे। अच्छा, एनी वन कैन, बोथ द डायग्राम्स आर वेरी सिमिलर। अभी मैंने सी ब्रिज का एक डायग्राम बनाया था, अब मैंने लैंड ब्रिज का डायग्राम बनाया है। कोई मुझे बता सकता है कि क्या चीज मैंने नहीं बनाई अब जब मैंने लैंड ब्रिज बनाना स्टार्ट किया? तो कैन एनीवन टेल? यस, योर आंसर इज राइट, मैंने सन नहीं बनाया, क्योंकि लैंड ब्रिज कब चलती है? इट ब्लोज एट नाइट, तो रात में आपको सनलाइट देखने को मिलती है। सो बिग आंसर इज नो। इज इट क्लियर? सो
दिस इज ए लैंड ब्रिज एंड इट ब्लोज, ये अभी हवा कब चलती है, रात में चलती है। तो इन द नाइट वी आर अनेबल टू सी द सी, रात के समय में सी देखने को बेटा नहीं मिलती है ना, तो दैट इज द रीजन। पिक्चर इज टोटली सेम, लेकिन वहां उस पिक्चर सी ब्रिज में मैंने सन दिखाया था, सन आई शो द सन वेयर, बट इन दिस पिक्चर मैंने सन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि दिस इज ए लैंड ब्रिज एंड इट ब्लोज एट नाइट। अब ये कब चलती है, रात के समय चलती है, तो इसमें मैंने क्या नहीं बनाया बेटा, सन नहीं बनाया। ठीक, अब आ जाओ फिर से वापस टॉपिक पे, एक बार फिर से इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। लैंड ब्रिज विद द, लैंड ब्रिज की क्या प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, लैंड हीट वेरी फास्ट एंड व्हेन देयर इज नो सनलाइट इट कूल्स आल्सो वेरी फास्ट। जब सनलाइट होती है लैंड बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, और व्हेन देयर इज नो सनलाइट इट कूल्स आल्सो वेरी फास्ट। Now let's discuss the property of a sea. When in the morning time मैंने क्या बताया, it take long time to warm up। इस पे सनलाइट जब आती है वाटर पे, सी वाटर पे, तो इट टेक लॉन्ग टाइम टू वार्म अप। एंड अनदर, इसे वार्म होने में ज्यादा टाइम लगा तो इसे कूल होने में भी क्या है, ज्यादा टाइम लगेगा। क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। You are understanding what I am saying? Now see student, what happens in the night, in the night time what's happen। अब नाइट में क्या होगा कि लैंड मॉर्निंग में बहुत जल्दी हीटअप हो गया था, मैंने उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी बताई कि जितना जल्दी ये हीटअप भी हो जाता है सनलाइट से, एंड व्हेन देयर इज नो सनलाइट इट कूल्स आल्सो वेरी फास्ट। सो इन द नाइट व्हाट हैपेंस, द एयर विच इज, अब ये लैंड क्या हो गया, बहुत कूल भी हो गया, वेरी फास्ट, कूल very fast when no sunlight। is it clear, is it clear to all of you? Cools very fast, which cools very fast, land cools very fast when no sunlight। is it clear? so अब क्या हुआ, now what's happened here student, in the night when there is no sunlight, तो ये प्रॉपर्टी है लैंड की, विदाउट सनलाइट इट कूल्स वेरी फास्ट। नाउ व्हाट हैपन व्हेन द लैंड कूल, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हवा है। अब जब रात में लैंड बहुत तेजी से कूल हो गया, तो अब इसके अबव जितनी भी एयर होगी, जितनी भी एयर होगी, एयर अबव दिस लैंड, तो वो कैसी होगी, हॉट होगी को कूल होगी। यस, गिव द आंसर, एक्सीलेंट आंसर। वो क्या होगी, कूल होगी। व्हाई, बिकॉज द लैंड इज कूल इन द, यही तो उसकी प्रॉपर्टी है कि व्हेन देयर इज नो सनलाइट देन लैंड कूल्स वेरी फास्ट, बहुत जल्दी से। ये जैसे गर्म भी बहुत जल्दी होता है, तो ये ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब इस सरफेस के ऊपर लैंड जब कूल हो गया विदाउट सनलाइट, रात में सनलाइट नहीं थी, तो अब इसके सरफेस के ऊपर जो एयर होगी वो भी कूल हो गई। क्या हो गई, कूल हो गई। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, वो भी एयर क्या हो गई, कूल हो गई। इज इट क्लियर? अब देखो वो एयर कूल हो गई, अब लेकिन यहां पे आओ, अब सी के सरफेस पे चलो। सी के सरफेस पे मैंने बोला था इट टेक टाइम टू वार्म अप, तब इसको वार्म अप होने में टाइम लगा था, तो इसको कूल होने में भी टाइम लगेगा। जिस तरह लैंड बहुत तेजी से जल्दी से कूल हो गया, तो ये वाटर, सी वाला जो वाटर है, ये तो इतना जल्दी कूल हो नहीं पाएगा। तो अब इसके ऊपर जो एयर होगी वो क्या होगी, हॉट होगी। वो क्या होगी, यही आपको समझना है बेटा, यही चीज थोड़ी सी समझनी है। लैंड क्या है, जैसे हीट भी बहुत तेजी से हुआ था, तो विदाउट सनलाइट कूल भी बहुत तेज हो गया। तो अब लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो क्या होगी, क्या होगी, वो एयर क्या होगी, कूल होगी। एंड सी वाटर इट टेक लॉन्ग टाइम टू वार्म अप, तो अब इसे वार्म होने में बहुत टाइम ज्यादा लगा था, लैंड बहुत जल्दी हो गया था। तो अब इसे कूल होने में भी तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब इस सी वाटर के अबव जो एयर होगी वो कैसी एयर होगी, हॉट एयर होगी। ठीक है,
अब सेम थिंग जो मैंने सी ब्रिज में पढ़ाया आपको, जब एयर हॉट होगी तो ये क्या करेगी, इट राइजेस अप, ये क्या हो जाएगी, ऊपर राइजेस हो जाएगी। और इस हॉट एयर की प्लेस कौन ले लेगी, दिस कूल एयर, दिस कूल एयर विल टेक द प्लेस ऑफ ए हॉट एयर। सो सी ब्रिज में क्या हो रहा था, आगे पहले बात समझ लो फिर बताता हूं, ठीक है। सो लैंड कूल फास्ट हो गया तो एयर अबव दिस इज कूल एंड इट टेक टाइम टू कूल इसे, तो इसके ऊपर जो एयर होगी वो हॉट होगी। तो हमने ये पढ़ा ना कि हॉट एयर राइजेस अप होती है, तो ये हॉट एयर है, ये ऊपर की ओर चली गई, ठीक। अब यहां जो एरिया बचा ये किसने ले लिया, कूल एयर ने। अब कूल एयर कहां से आई, नाउ दिस कूल एयर इज कमिंग फ्रॉम द लैंड साइड, दिस कूल एयर इज कमिंग फ्रॉम द लैंड साइड, और यही सर्किल कंप्लीटली चलता रहता है, ऐसे ही हवा चलती है, ठीक है, ये कंप्लीट सर्किल चलता रहता है। कूल एयर इसकी स्पेस ले लेगी, हॉट एयर ऊपर जाएगी, फिर हॉट एयर जहां पे जब लैंड के उस पे आएगी तो यहाँ वो कूल हो जाएगी, फिर वो कूल एयर हो जाएगी, और कूल एयर बन के फिर वो इधर जाएगी और इधर से हॉट एयर, ये कंप्लीट सर्किल चलता रहता है। तो एक बार क्लॉकवाइज थी, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, सी ब्रिज जब हम लोग किए थे तो देखो ये सीधा हाथ हमारा चल रहा है क्लॉकवाइज, अब लैंड ब्रिज हो गई तो उल्टा चल रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये है आपकी लैंड ब्रिज। ये कब होती है, ये एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, व्हेन लैंड ब्रिज ब्लोज, लैंड ब्रिज ब्लोज एट डैश, तो आंसर क्या होता है नाइट, और सी ब्रिज ब्लोज एट डैश, आंसर क्या होगा डे। तो दिस इज अ कंप्लीट understanding I have given you about what land bridge and sea bridge, and I hope you all are able to understand। एक बार रिकैप्चुलेशन करा देता हूं इसी की, ठीक है, लैंड ब्रिज, ठीक है। सो व्हाट हैपन, द प्रॉपर्टी ऑफ द लैंड इज दैट इट क्विकली हीट अप विद द heat of the sunlight, and when there is no sunlight it quickly cools down, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। सी वाटर की क्या प्रॉपर्टी है, इट टेक टाइम टू वार्म अप एंड इट आल्सो टेक टाइम टू कूल, लेट से वार्म होगा तो कूल भी तो देर से होगा, तो दैट इज नाउ सी इन द नाइट व्हेन देयर इज नो सनलाइट, so land is very cool, now the air which is above the land surface that is cool, why, because land is cool, वो cool क्यों है, क्योंकि land cool है, ठीक है। अब now the air which is above the water, sea water level, that is hot, that is hot, क्योंकि वो टाइम लेता है, ज्यादा टाइम लेता है वार्म होने में, तो उसे कूल होने में भी टाइम लगेगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस, फ्रॉम द सी वाटर, यहाँ जो एयर होगी इसके सरफेस के ऊपर, सी वाटर के सरफेस के ऊपर जो एयर होगी बेटा, दैट एयर इज कैसी होगी, हॉट एयर होगी, कैसी एयर होगी, हॉट एयर होगी। अब हॉट एयर rise up and this cool air which is from land पे जो cool air है it take the place of the hot air, this is a continuous process, इसी तरह हवाएं चलती हैं, that is sea bridge and land bridge। I hope you are able to understand, if there is any confusion you can ask in your doubt section, I will repeat the topic for you, क्योंकि दिस इज अ न्यू टॉपिक, ये आपको क्लास 1 2 3 में नहीं था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है व्हाट इज सी ब्रिज एंड व्हाट इज लैंड ब्रिज। इसलिए अगर अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स कर करके वीडियो वॉच करते समय पढ़ना, इवन यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड आई कैन एक्सप्लेन यू 1 or 2 times again on the board, okay। So sea bridge, land bridge we have covered, or the movement, now see now student, the important thing is what, the movement caused by hot and cold winds are known as convection current,
कन्वेंशन करंट is known as convection करंट। जो हॉट एयर और कोल्ड एयर की जो मूवमेंट होती है, इज इट क्लियर, इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।